Hello Aishwarya, then how are you? So hope you are fine and doing good studies. So last class we have discussed about regarding sine and cos, right? At what point the sine is going to become 0 and at what point cos is going to become 0. So just we will have a small recap. So you know that sine n pi is going to become 0. Kindly keep this in the mind. So this n pi symbolizes 1 pi, where n is a integer, positive or negative integer. So this is 2 pi, 3 pi and 4 pi, 5 pi, 6 pi and so on. Is it clear? So if I draw a small Cartesian plane, then here this will be 0. If you take one rotation in anti-clockwise direction, this becomes 1 pi. This location is 1 pi. You are taking one more rotation. This location is 2 pi. One more half rotation. This location is 3 pi. This location is 4 pi and so on. So these are the 2 points at which you will get sine as 0, correct? So this is written in general form as n pi. Now regarding this 2 point, that is here you will be getting sine 90. This is 91 and this is 270 minus 1. So whenever you land here you will get 1, and whenever you land here you will get minus 1, right? Regarding cos, it is just the reverse one. So in cos, at this point you will get 1. This is 1 point and this is minus 1, and at this point you will get minus 1, and here you will be getting 0, and here also you will be getting 0, right? So this point symbolizes 0. So this you can say as pi by 2. So if you take one rotation, half rotation, quarter half rotation in anti-clockwise direction, and this you can call as 3 pi by 2, that is 270 degree. If you come here, this is 5 pi by 2 and this will be 7 pi by 2, this will be 9 pi by 2, this will be 11 pi by 2 and so on. Is it clear, my dear students? Now so regarding cos, you can write cos, and this pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, 9 pi by 2, 11 pi by 2 dot dot. General version is 2n plus 1 pi by 2, and this is actually 0, right? So this 2n plus 1 pi by 2 symbolizes what? Pi by 2. So if I put n equal to 0, I will be getting 0 plus 1, that is 1 pi by 2. If I put n equal to 1, I am getting 3 pi by 2. If I put n equal to 2, I will be getting 5 pi by 2, 7 pi by 2, so on. So this is pi by 2. Next is 3 pi by 2. Next is 5 pi by 2. Next is 7 pi by 2. Next is 9 pi by 2, so on. Clear? So this is very important. Now I am going to teach you how to make sine graph. Okay bachcho? Okay Aishwarya. So you see, this is sine graph. So this graph is sine graph, correct? So this is 90. So sine 90. So this x-axis is the radian which you are putting, and over the y-axis you are getting the value, right? So this is 90. So sine 90 is 1. How 1? If I go up and I take this, so this value is 1. This is sine 180 bachcho. So sine 180 is 0, you know that. And this is sine 270. Sine 270 is minus 1. You come down and this is the minus 1 output. And this is sine 2 pi. Sine 2 pi is 0. Clear? Now how you plot the graph, the information is given here. You see, this is very simple. This you have studied in 10th class also. Sine 0 is 0. Okay. Sine 30 is half. Sine
45 is root 3 by 2. This is sin 60 is root 3 by 2. Sin 45 is not taken over here. This is sin 90 is 1. Okay, so this is sin 120 is 0.87. Fine. And this is sin 150 is 0.5. This is sin 180 is 0. And so like that we have given all the radian measures, and this is the value of sine function. Okay, so using this point, this is not important from examination point of view ऐश्वर्या, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है ये बना कैसा है. ओके, तो ये पूरा आपको प्लॉट करना है एक्स एक्सिस में, इसको आपको प्लॉट करना है वाई एक्सिस में. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है 0 0, तो ये बन गया 0 0. सेकेंड पॉइंट है ऐश्वर्या देखो 30,0.5, 30,0.5, तो ये है आपका 30 करेक्ट, और ये है 0.5. यानी आपके सारे पॉइंट को यहाँ प्लॉट करके जॉइंट करोगी तो यू विल गेट ग्राफ लाइक दिस, यू विल गेट ग्राफ लाइक दिस. इट्स सिंपल. ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ ग्राफ में 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, π/2 से π सेकेंड क्वाड्रेंट, आपको मालूम है ना. सो हियर यू सी सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको आप क्या बोलोगे, फर्स्ट क्यू, दिस इज सेकेंड क्यू, एंड दिस इज थर्ड क्यू, एंड दिस इज फोर्थ क्यू. ठीक है, आप सबका रेंज देख लीजिए. फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है 0 से शुरू होके इट गोज अप टू π/2. ओके, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. π/2 से दिस इज कमिंग एज पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट. पाई से दिस इज कमिंग 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 3π/2 से इट इज गोइंग हियर, इट इज 2π फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ओके, सो हियर यू कैन राइट फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज है बच्चों वो 0 से लेके π/2 तक है. ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट एस क्यू यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, यू विल स्टार्ट फ्रॉम π/2 एंड यू विल गो अप टू π. ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट टी क्यू, थर्ड क्वाड्रेंट यू विल स्टार्ट फ्रॉम π एंड गो अप टू 3π/2. फोर्थ क्वाड्रेंट आपका शुरू होगा 3π/2 से 2π. आई होप यू नो दिस. And the angle equivalent is 0 to 90, and here 90 to 180, and this is 180 to 270, and this will be 270 to 360. कितना आ जाएगा 360. करेक्ट. So now if you see regarding the increase and decrease of sine function, you itself can tell me in the first quadrant, which is 0 to π/2, the sine is increasing. Okay, from π/2 to π the sine is decreasing. Π to 3π/2 again sine is decreasing. 3π/2 to 2π it is increasing. So increasing, decreasing, decreasing, increasing. ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं आपको और भी क्लियर कर लेता हूँ. ये मैं आपको बना दिया ऐसे करके, मैंने बना दिया ये. ठीक है, ऐश्वर्या दिख रहा है. तो ये है ऐश्वर्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इट इज रेजिंग अप, सेकंड क्वाड्रेंट इट इज कमिंग डाउन, थर्ड क्वाड्रेंट अगेन इट इज कमिंग डाउन, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इट इज रेजिंग. तो ये है, देखिए आपको टेक्स्ट बुक में लिखा है ये, it is there in page number 59. Okay, page number 59. If you see sine first quadrant increases from 0 to 1, फिर decreases from 1 to 0, फिर decreases from 0 to -1 and increases from -1 to 0. ये साइन आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तभी बाकी समझ में आएगा. ठीक है, तो ऐश्वर्या जी तो देखिए ये 0 है, बिकॉज साइन 0 इज 0. 90 में देखेंगे तो ये देखिए 1 आ गया, तो 0 से बढ़ के 1 तक गया, फिर 1 से बढ़ के 180 तक आया, घट के 180 नहीं 0 तक आया, बिकॉज आई एम
सीइंग द टेलिंग द आउटपुट नॉट द इनपुट। तो 1 से घट के 0 आया बच्चों, फिर 0 से इट केम टू -1 एंड फ्रॉम -1 इट इज़ राइजिंग टू 0। सो दिस इज हाउ द साइन फंक्शन बिहेव्स विथ रेस्पेक्ट टू द रेडियन। यानी 0 से π/2 अगर आप रेडियन में जाओगे तो साइन फंक्शन का वैल्यू 0 से 1 जाएगा, π/2 से पाई जाओगे रेडियन का वैल्यू, और आपका यानी इनपुट आपका जो आउटपुट है वो 1 से 0 आएगा। फिर पाई से 3π/2 अगर आप जाओगे तो आपका जो आउटपुट है वो 0 से -1 और नीचे जाएगा। फिर 3π/2 से 2π जाओगे तो आपको जो आउटपुट है वो -1 से चढ़ के 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इनपुट आउटपुट क्या है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ। तो साइन फंक्शन का एक ऐश्वर्य क्लियर हो गया आपको कि ये ग्राफ बनाना है, इसको मैं मैग्नीफाई करके दिखा दिया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पॉइंट से आप ग्राफ प्लॉट करोगे। ठीक है, वैसे आपको इसमें सारा पॉइंट का ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे 0 ले लिए, मतलब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लीजिए, दोनों में से कोई एक। ठीक है ऐश्वर्या, तो ये देखो बच्चा, ये 30 है, ये 60 है, इन दोनों में कोई एक ले लीजिए, इन दोनों में कोई एक पॉइंट ले लीजिए, इन दोनों में कोई एक पॉइंट ले लीजिए, इन दोनों में कोई एक पॉइंट ले लीजिए। तो आपको जो बॉक्स है वो थोड़ा सा छोटा बन जाएगा, राइट। तो 0 से 1 के बीच में आप ये ले लीजिए, ओके 30 ना। 1 से 0 के बीच में ये ले लीजिए, ये वैल्यू ले लीजिए। 0 से -1 के बीच में 7π/6 ले लीजिए। -1 से 0 के बीच में 5π/3 ले लीजिए। तो ऐसे करके यू कैन रिड्यूस द वैल्यू बॉक्स, द बॉक्स बिकम स्मॉलर। ठीक है, नाउ सो दिस इज क्लियर। सो इनपुट आउटपुट क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे देखिए, ये है sin 30, ओके। sin 30 मुझे क्या मिल रहा है, हाफ। इज इट क्लियर? तो ये जो 30 है आप इसको बोलोगे इनपुट, बिकॉज ये मैंने साइन को खिलाया है, इनपुट। इनपुट को टेक्निकली मैथ्स में बोलते हैं डोमेन। याद रखिए, क्या याद रखेंगे, डोमेन। ये जो आपको हाफ मिला है ना, इसको बोलना आउटपुट। आउटपुट यानी जो आपको मिलता है, ठीक है। और ये हाफ को आउटपुट को हम लोग और एक नाम बोलेंगे रेंज। याद रखना, ये बेसिक चीज़ है। डोमेन यानी आप क्या क्या वैल्यू साइन को दे सकते हो, और वैल्यू यू नो दैट रेडियन का वैल्यू देने के बाद में आपको साइन का क्या वैल्यू मिलता है, दैट इज आउटपुट। टेक्निकली वी कॉल दैट एज रेंज। इज इट क्लियर? सपोज आई से sin 60. Now tell me, Aishwarya, what you are going to get? Sin 60 is √3/2, right? So this 60 is input, and technically you call this as domain, and this √3/2 is output, and technically you call this as range. Is it clear? तो यही है। तो ऐश्वर्या, अभी आप जब ग्राफ में देखती हो, देखिए ये ग्राफ में ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस इनपुट एक्सिस है, क्या क्या आप डालते हो, और ये वाई में जो आपको मिल रहा है ये आउटपुट है, आपको क्या क्या रेंज है, रेंज एक्सिस आप बोल सकते हो। दिस इज डोमेन एक्सिस। तो देखिए आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। इज इट क्लियर? देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। You can put any value. You can put 0, you can put 30, you can put 1 degree, 1 radian, 2 radian, 3 radian, 4 radian, 5 radian. Okay, you can put pi/6 radian. Any value you can put. So technically you can say that in the case of sine function. Now this is very important. Now I am discussing sine function. So in sine function, the डोमेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। डोमेन आप बोल सकते हो आर। आर मतलब क्या है? यू कैन पुट एनी रियल नंबर विदाउट एनी प्रॉब्लम। एम आई राइट और रॉन्ग? आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, करेक्ट। अगर आपको और दूसरा कुछ फॉर्म में लिखना है, यू कैन से दैट यू कैन राइट डोमेन, क्या बोलेंगे, इज ए set of real number, anything you can put। सही है ना? रेंज, रेंज क्या है, आपको क्या मिलेगा बताइए? यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम 1 एंड मिनिमम -1 एंड एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड -1। एम आई राइट?
तब कोई भी रेडियन पुट करिए साइन में, आपको जो मिलने वाला है वो यही मिल रहा है, देखिए है ना, ये सारा वैल्यूज़ आपको मिल रहे हैं। तो ये सारा वैल्यूज़ को अगर आप वाई एक्सिस में लाओगे तो देखो ऑल द वैल्यूज़ यू आर गेटिंग इज बिटवीन 1 एंड -1। जैसे साइन 90 1 मिला, 1 से ऊपर तो नहीं गया, और साइन 270 -1 मिला, साइन 2 पाई 0 मिला, साइन 0 0 मिला। मतलब आप कोई भी रेडियन साइन में पुट करोगे यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू बिटवीन 1 to -1 इंक्लूडिंग दैट एंड पॉइंट्स, करेक्ट। तो इसको कैसे लिखोगे सेट फॉर्म में, आप ऐसे लिख सकते हो, वेरी सिंपल, इंटरवल फॉर्म में -1, 1, दिस यू कैन गेट राइट, -1, -1, और you can say that in set builder form the set of all y, क्यों y, because y is the output, the set of all y such that y is what, less than equal to -1, or you will be getting y is less than, sorry, you will be getting -1 से आपको ज़्यादा मिलेगा, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और y इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, ओके, कॉमा, एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। सो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज इंटरवल, समझ में आया ना। तो द सेट ऑफ ऑल बाई सच दैट y इज व्हाट, काट के मैं लिख देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी -1 से ज़्यादा, एंड y इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 या 1 से कम ही मिलेगा आपको, एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द साइन फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। तो ये मैंने शॉर्ट वीडियो में क्या बताया आपको, ध्यान से सुन लीजिए। मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहली बात, रिवीजन रिकैप हो जाए, साइन कब 0 होता है, कॉस कब 0 होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका रेडियन का रेंजेस क्या है, ठीक है। फिर मैंने बताया ये जो साइन फंक्शन है ये बनाना कैसा है, वी हैव टू ड्रॉ द बॉक्स। बॉक्स में सारे पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया था फर्स्ट, सेकंड, 0 1 के बीच में कोई एक पॉइंट लीजिए, 1 और 0 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, फिर आपका ग्राफ बन जाता है, राइट में। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, राइट। ये जो एक्सिस है बच्चों, इसको बोलते हैं इनपुट, यानी आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, ये सारे रियल नंबर्स को आप डाल सकते हो, ऑलमोस्ट यू आर कवरिंग ऑल द रियल नंबर्स। और यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द आउटपुट जो आपको मिलता है वैल्यू डालने के बाद, इज इट क्लियर। तो डोमेन को कहते हैं इनपुट, रेंज को कहते हैं आउटपुट। तो डोमेन यानी आर रियल नंबर, यू कैन पुट एनी रियल नंबर, डोमेन इज ए सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज है -1 to 1, ठीक है। तो ये रेंज है, रेंज यानी आउटपुट, तो आपको मिलेगा -1 से कम, -1 से ज़्यादा या 1 से कम, -1 से ज़्यादा या 1 से कम। आप साइन कितना भी ले लीजिए, इवन इफ यू आर टेकिंग साइन 1000, sin 1000, then also you will be getting the value more than -1 and less than 1। आपको क्या मिलेगा, ओके, more than -1 and less than 1 ही मिलेगा कोई भी साइन का वैल्यू में। तो ऐश्वर्या, आप पहले इसको अच्छी तरह से बना के मुझे भेजिए, एंड ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ ऑल्सो प्रॉपरली, एंड देन यू कॉल मी, okay, then you may be having small doubt that we will discuss. Once that is clear, then definitely you will understand what is cos function and what is rest of the functions. Okay, so that's all for today's class.